So last class we were doing about Sthula Dhyana, and we understood all the three types of Sthula Dhyana, and now we are going ahead with the understanding of Sukshma Dhyana, not Sukshma Dhyana, Tejo Dhyana. After Tejo Dhyana, we will be coming across Sukshma Dhyana. If we come to the 15th shloka, he says, Sthula Dhyanam tu Katitam Tejo Dhyanam Shrunashva Me Yad Dhyanena Yoga Siddhir Atma Pratyakshameva Cha. I have explained to you what is Sthula Dhyana, says Hiranda Muni, and he literally says, now try to understand Tejo Dhyan, by which success is attained in yoga and the self is realized. Pratyaksha Atma, or फिर Atma Pratyaksham cha Yoga Siddhi. You are gaining success in yoga by knowing your Atman itself. That is getting yourself towards that kind of realization. In Sthula Dhyana, friends, as we saw in the previous class, the first one was a journey through a beautiful Shirisagar in your heart, making you to understand what you say as island, the island which is made up of precious stones, surrounded by the nipa trees and the bushes of the flowers. And in the midst of that island, we see a kalpa vriksha having 4 branches related to the 4 Vedas, which we are bearing the fruits of as we live our whole life. It is like going through the whole understanding of the 4 Vedas itself in its rituals, day-to-day life. And then we hear the sound of the beetles, the cuckoos, the bird singings and all. And literally we are guided towards a pandal where there is a Sinhasan, and on that Sinhasan is your Ishta Devata. And just allowing your mind to become focused on the Ishta Devata, you are completely surrendered to the self. So this was number 1. The number 2, Sthula Dhyana, was imagining a 1,000-petaled lotus having a pericarp of 12 petals. And in between those 12 petals, there is a triangle. In that triangle, you have an understanding about Om. And he says the triangle having 3 sides, A, Ka, Tha, also 3 angles, Ha, La, Sha. This way, he talks about that understanding of pranava in between that and allows us to become focused on that pranava. Now, that is another way of getting into Sthula Dhyana. The third Sthula Dhyana, he talks about the Hamsa Yugma, that means a pair of Hamsa in the form of the pair of footwear, Paduka, and that we imagine as our Guru. That means all the teachings from our ancestors, ancient gurus, we should imagine and see with our closed eyes, imagine about the Guru, and as if the Guru is leading us into the understanding of self-realization. These were the 3 understandings of the Sthula Dhyana, 3 variations given to us in the previous shlokas. Now, when it comes to Tejo Dhyan and Sukshma Dhyan, yes, Sunil bhai. So, Sagar bhai, so जो भावना का रोल जो ध्यान में वो मतलब कितना अहमियत रखता है? बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि when you are leading yourself from your material connections and into something else which you have never imagined, ये भावनाओं का कन्वर्शन ही तो है. Then imagining the yantra and tantra, which is something going to, like, giving vent to your other thoughts, and
मेकिंग ए काइंड ऑफ फोकसिंग ऑफ द माइंड, धारणा वाला कंसेप्ट आ जाता है। और जहां तीसरी बात है, तो जो तीसरा उन्होंने दिया, उसमें भी उन्होंने यही बताया कि भाई यू हैव टू इमेजिन द पादुकास ऑफ द गुरु, एंड हियर तो घेरंड मुनि सेज द गुरु इज नन अदर देन द आदि गुरु लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। सो you surrender completely to the guru and imagine the guru leading you in towards the journey. So जैसे कि हम योग सूत्र में भी पढ़ते हैं, वहां पर कंसेप्ट है प्रतिपक्ष भावना का। You are literally told to divert your mind which is becoming like a obstacle for you in your day to day life. If you see them as disturbing, as an obstacle, you have to cultivate a particular understanding of your mind where it leads you to the better things, or I should say positive, rather than getting into this negativity of the thoughts. So there we see as pratipaksha bhavana. Here we see all the bhavanas are guiding, leading, holding your hand and taking you there. तो और मैं तो यही कहूंगा कि बिना भावना के कन्वर्शन के इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू धारणा और ध्यान। ठीक, अगर किसी को जबरदस्ती से बिठा दिया जाए और उसको कहे कि ये तुम्हारे सामने मूर्ति है या ये चित्र है, ये फोटोग्राफ है, इसके पर ध्यान करो, और उसकी भावना उससे जुड़ती ही नहीं है, तो कहाँ से वो ध्यान कर पाए? उसके मन में तो वही सारी बातें आएंगी जो उसे मिसलीड करती हैं या फिर डाइवर्ट करती हैं, और वो कहेगा कि मुझसे ध्यान नहीं होता, क्योंकि उसका चंचल मन जो है उसको कहीं और ही कनेक्टेड रखता है। तो भावनाओं का पूरा डेफिनेशन ही यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो सात्विक भावनाएं होना बहुत जरूरी है, अगर वो ना हो तो शायद डाइवर्शन ऑफ द माइंड इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ध्यान करने से पहले प्राणायाम का होना जरूरी है, या फिर प्राणायाम के प्रैक्टिस का होना जरूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम ओनली लीड्स यू टू ध्यान। प्रत्याहार होना जरूरी है, आपका जो है आसन होना जरूरी है। ये सारी चीजें जो है हमारे बॉडी की सिर्फ कल्चरिंग करती है या उन्हें स्ट्रांग बनाती है, ऐसे नहीं है। इट हैज अ ग्रेट इफेक्ट ऑन योर माइंड ऑल्सो। पतंजलि मुनि कहते हैं तो द्वंद्व अनाभिघातः, तो आसन के अभ्यास से ही द्वंद्वों का नाश होने लगता है। तो ऑब्वियसली वो भावनाएं कल्टीवेट हो जाती हैं जो हमें हमारे जर्नी में आगे की ओर ले जाए। तो भावनाओं को तो रोल होता ही होता है, बिना भावनाओं के कन्वर्शन के तो ये बात ही नहीं बनती आगे। हाँ, इतना ही है। और हाँ, बोलिए। नहीं, प्लीज प्लीज। इतना ही है कि ये जो भावनाओं के हम बारे में बात करते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि विच भावना लीड्स अस वेयर। वो जरूरी हो जाता है कि हम हमारे जो ध्यान का जो स्तोत्र है उसको सात्विक चुने तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो जैसे पतंजलि मुनि चित्त प्रसादन में कहते हैं यथा अभिमत ध्यानाद्वा, तुम्हारे मन में जो आए, तुम्हें जो पसंद हो, जिसके ऊपर तुम्हारा दिल लगता हो, तुम उसी के ऊपर जो है ध्यान करो। लेकिन वो कई लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं उसको उसको सही तरीके से ये नहीं करते, तो वहां पर वो सात्विक भावना रखना बहुत जरूरी हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो हाँ, मैं बस ये कह रहा था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर अपने देश में देखें तो जैसे अपन कोई एक पत्थर हुआ, कोई एक वृक्ष हुआ, अपने लोग तो बस कोई भी चीज को उठा के वो पूजा करने में सक्षम है। हाँ, क्योंकि शायद क्योंकि शायद दिल में भावना श्रद्धा की है, तो भावना अगर श्रद्धा की है तो फिर सामने ऑब्जेक्ट क्या है वो इतने ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यस। Whereas, इसके बहुत बड़े मायने हैं जी कि वृक्ष के अंदर देखना, या फिर पत्थर में देखना, या फिर कोई और स्वरूप में देखना। अभी हमारे हठयोग टेक्स्ट के अंदर ऐसी भी, इसमें घेरंड संहिता तो नहीं है, लेकिन अगर आप शिव संहिता में पढ़ेंगे ना तो उसमें प्रतीक उपासना है। वो प्रतीक उपासना जो 5वें चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में, प्रतीक उपासना में उन्होंने क्या कहा, तुम अपनी छवि को बादलों के बीच देखो, अपनी ही छवि को बादलों के बीच देखो, वो तुमको जो है अपने स्वरूप की तरफ ले जाएगी। और शिव सर्वोदय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, अपनी छवि को छाया पुरुष के रूप में देखना। मतलब अपनी जो छाया है
वो पुरुष तत्व की छाया, यानी पुरुष तत्व ही है वो। जो तुमको दिखाई दे रहा है तुम उसी में अपने आप को देखो, वही तुमको लीड करेगा। अब ये ऐसे-ऐसे मतलब पुराने ग्रंथ हैं जो मतलब आज जिनका ज़्यादा स्टडी हो रहा है, जैसे कि शिव स्वरोदय है, जहाँ पर स्वर का ज्ञान हमको प्राप्त होता है, यानी साँसों को हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं और साँसों के एक्सपीरियंस से हमारे शरीर के अंदर कौन से प्रॉब्लम्स हैं, क्या तकलीफ़ें हैं, क्या परेशानी है, वो तक हमको पता चलती है। अगर आप शिव स्वरोदय को अगर कभी डीपली आप पढ़ेंगे तो। ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल कितना एक्टिव होना चाहिए, राइट नॉस्ट्रिल कितना एक्टिव होना चाहिए, अगर एक एक दिन से ज़्यादा अगर कभी एक्टिव है या दिन में एक्टिव है और दूसरा रात में एक्टिव है, तो इसके क्या रिज़ल्ट हैं? और आप कितना दूर चले जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी से, ये सारे अंदेशे जो हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ऑल दिस थिंग्स समव्हेयर कनेक्ट अस टू, मतलब ये तो कैसा है कि एवरीडे एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं। हम अपनी छायाओं को रोज़ देखते रहते हैं। हम बादल को हमेशा रोज़ देखते रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारे सामने रहने वाली चीज़ें हैं। लेकिन यही चीज़ें हमको किस तरह से आगे लेके जाके गाइड करती हैं, कि भई तुम प्रकृति के बियॉन्ड जाकर जो है अपने उस सेल्फ का एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हो? ये हमारे ग्रंथों में से ही हमको प्राप्त होता है और ऐसा है हमारे देश में। अब कई दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं कि तुम पत्थर रख दोगे और उसकी भी पूजा करने लग जाओगे, उसमें भी तुम अपना भगवान देखते हो, तो कैसे है ये? कुछ कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि तुम गाय को अपनी माता बोलते हो। क्या तुमने राइट। उसके कोख से जन्म लिया? ऐसे करके पूछ बोलते हैं। अब ऐसे लोगों के जो ये दिमाग में जो बातें रहती है, वो इग्नोरेंस वाली बातें हैं, उनको ऐसे लोगों को समझाने से अच्छा है कि हम खामोश रहें, वो ज़्यादा बेटर है कि भई अच्छा ठीक है, तुम बोल लो, तुम्हारे मन में जो आए, लेकिन हकीकत तो ये है, ये जो हम जानते हैं। सो नॉलेज प्लेज़ अ वेरी इंपोर्टेंट रोल देयर। करेक्ट। सो व्हिच आल्सो ब्रिंग्स अस बैक वंस अगेन, जो अभ्यास वैराग्य का जो लाइक दो पहिए हैं साइकिल के, तो आई थिंक एट एवरी स्टेज ये अनिवार्य है कि दोनों साथ साथ चलें, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। वैराग्य मतलब वैराग्य से आपकी भावना का डेवलपमेंट होता है, सात्विक भावना का। और अभ्यास तो खैर सारा योग का ध्येय है ही। तो आई थिंक एट नो मोमेंट कैन द वन बी डिवोर्स फ्रॉम द अदर, अगर साधना को ढंग से चलना है तो, है ना? यस, इज दैट बिल्कुल। राइट? जब हम कहते हैं ना भावनाओं का डेवलपमेंट, दैट इज़ अभ्यास एंड इट नीड्स वैराग्य। हर हर एक प्रकार का जो आपका जो डेवलपमेंट है, दैट इज़ अभ्यास ओनली, दैट इज़ प्रैक्टिस ओनली, दैट इज़ करेक्ट, साधना करेक्ट, ओनली। करेक्ट, 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 वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चाहे इस शरीर का तरह से ही विकास हो, देखना चाहिए। चाहे श्वास का विकास हो, चाहे मन का विकास हो, चाहे बुद्धि का विकास हो, चाहे भावना का विकास हो, बिल्कुल सही बात है। any technique oriented development is अभ्यास, राइट? अभ्यास ओनली, या और और एक उसके एनी, साथ, हाँ, हाँ, जी उसके जी, साथ-साथ ये वैराग्य होते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम होते हाँ, रहना चाहिए। हाँ, राइट। Can we also say vairagya is the ability to, shall we say, see the reality in a more correct manner? Better said as not getting distracted by the distractions or deviations. वैराग्य इज दैट। नहीं तो अब हम यहाँ बैठे हैं और वो कोयल अलग-अलग प्रकार की आवाजें निकाल रही है। तो आपका ध्यान तो मेरे बातों के ऊपर सुनने के ऊपर है, लेकिन माइक से वो भी सुनाई दे रहा है, लेकिन दैट कैन Hmm. बिकम अ डिस्ट्रैक्शन। सो वो कू Hmm. की जो आवाज है, जब तक हम उसके प्रति वो वैराग्य डेवलप नहीं करेंगे, तो जो जिसकी तरफ हमको ध्यान रखना चाहिए वो होगा ही नहीं, अभ्यास ही नहीं होगा। तो एवरी एस्पेक्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि वैराग्य हैज टू बी ब्रॉट एट द फोर लेवल, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना, व्यतिरेक, यतमान, हाँ, ये जो लेवल्स हैं अभ्यास के, जो हमको वशीकार वैराग्य की तरफ लेके जाते हैं। और एक बार वशीकार वैराग्य में आ जाने के बाद फिर जो है योर ध्यान और द योगिक प्रैक्टिसेस ओनली विल टेक यू टुवर्ड्स दैट गुण वैतृष्ण्यम व्हिच इज परम वैराग्य। नहीं, ये वाला जो यू आर एब्सोल्युटली राइट। केवल मेरा एक छोटा सबमिशन है कि जो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना इज एन एलिमेंट ऑफ धारणा। भाई, आप ही के शब्दों को हम धारण कर सकें उस मोमेंट में, टू द एक्सट्रीम, क्योंकि धारण तो एक ही चीज की जा सकती है चित्त में एक समय, तो वो आपके शब्द ही रहें, ये एबिलिटी तो मेरे ख्याल में धारणा में आएगी। वेयरएज आई फील कि डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी से
हम ये रियलाइज करें कि भाई जो कोयल की आवाज है वो हमारे लिए इस वक्त मायने नहीं रखती। ये हमारे ध्येय के हिसाब से कोयल इज इररिलेवेंट। आपके शब्द ही हमारे लिए इस वक्त हमारे लिए अप्रोप्रिएट हैं। अगर ये डिस्क्रिमिनेटिव अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे मन में आ जाएगी तो हमें फिर एफर्ट नहीं करना पड़ेगा किसी चीज को दूर रखने के लिए। वो सहज मतलब रूप से यस यस, हाँ, तो वेरी मच। वो जैसे कि हम धारणा बोल रहे हैं या फिर ध्यान बोल रहे हैं या फिर वो डिस्ट्रैक्शन को जो है एक तरफ करके जो हम फोकस करने की बात कर रहे हैं, तो जो एक तरफ फोकस कर रहे हैं, जो डिस्टिंक्शन ला रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन ला रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, तो जब हम दूसरी चीजों को डिस्टिंक्शन करके उसको जो छोड़ने की जो बात करते हैं, दैट इटसेल्फ बिकम्स, जो छोड़ना है वो वैराग्य है। तो इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल, होलिस्टिक अप्रोच आ जाता है उसके अंदर आपके। जी जी जी, इसीलिए तो पहले चैप्टर के अंदर उन्होंने सिर्फ अभ्यास वैराग्य कहा। सेकंड चैप्टर में उन्होंने हमारे सामने क्रिया योग और अष्टांग योग रख दिया। थर्ड जी, चैप्टर के अंदर उन्होंने हमारे सामने संयम रख दिया। और चौथे जी, चैप्टर में ये भी कह दिया कि अब तुम जो है चित्त निर्माण को दिमाग में ले आओ, और चित्त निर्माण से जो है अपने भोग प्रवृत्ति को अलग अलग चित्त से ये फेस करते रहो, एंड एट द सेम टाइम यू रिमेन फोकस्ड। सो क्रिएट राइट, सो मेनी राइट, राइट, चित्तास कि दे आर मेकिंग you away from what you are supposed to be focused. राइट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो व्यास भाष्य अपने इसमें क्लैरिटी में कहते हैं कि सिर्फ खाली आपको चित्त निर्माण की बात नहीं, आप हमको तो ये भी समझना चाहिए कि काया निर्माण और चित्त निर्माण भी आप कर सकते हो। उन्होंने ऐसे भी कह दिया। तो करेक्ट, somewhere करेक्ट। somewhere these things have to be understood at that level। नहीं तो अगर एक मतलब ना समझ इंसान अगर कभी उसको पढ़ेगा तो बोलेगा दिस इज नॉट पॉसिबल व्हाट एवर इज बीइंग सेड, ऐसा लगेगा उसको। लेकिन वो जो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमको जो अंदर से उसके तरफ फोकस करके हमको ऐसा सोच करके जो है बाकी की चीजों को जो है निकालने के लिए जो एक तरीके का उन्होंने एक ये करवाया, एहसास करवाया कि दिस वे यू कैन रिमेन अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड रिमेन फोकस्ड ऑन योर पाथ। तो वो हमको चौथे चैप्टर में मिलता है। जबकि ये हर एक चैप्टर के अंदर आपको वो अभ्यास और वैराग्य के जो ये है ना, वो दिखते जाएंगे आपको। आप चित्त प्रसादनम में ही आप ले लीजिए ना, उन्होंने कितनी बातें कही। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, प्राण से कनेक्ट कर दिया। फिर वहां पर वो बोलते वितराग विषयम, जो वितरागी मींस ऑल दोस पीपल हु आर डिटैच्ड, उसके ऊपर फोकस करवा दिया। विशोका व ज्योतिष्मति, मतलब जो ग्रिफलेस स्टेट है या ज्योतिर्मय स्टेट है, उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं कि हम अगर कभी उसके ऊपर फोकस हो जाते हैं तो बाकी की चीजें निकल जाती हैं। तो जहां वो चीजें निकल जाती है, निकालने के लिए अगर जब तक हम हमारे अपने अंदर वो वैराग्य का भाव नहीं लेके आएंगे, तो शायद उनसे जुदा होना हमारे लिए मुश्किल होगा। क्योंकि जो इंसान रागी होता है, जो अटैच्ड होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन हमको भगवत गीता से ज्यादा कहाँ मिलता है? दैट एक्सप्लेनेशन इज देयर। So Vinoba Bhave puts it very simply. He says abhyas is like cultivating a good habit. अगर आपने कुछ तय कर लिया है कि आपको किसी चीज के ऊपर ध्यान देना है, तो वैराग्य is like removing the weeds. अगर if you're growing a plant, तो आजू बाजू में soil में इतने weeds निकलते हैं, they sprout up on their own. So when you remove the weeds, then that plant, which is the main plant which has to grow, will grow. Otherwise, if you allow the weeds to be there, the main nutrition of the plant will be taken away by these weeds. So the main plant won't grow. So he says Vairagya is nothing but removing the weeds, and Abhyas is nothing but nurturing the good habit or the main plant or whatever you want to nurture. So सब तो वैसे ही explain करते हैं. There's no difference. Yes, yes, of course, no doubt about it. Basically, अगर आप धारणा कहिए, ध्यान कहिए, basically you have to concentrate on that main object. भगवान को पाना है किसी भी चीज में. Distractions are going to take away all the nutrition or the strength, so to say. So उस ध्येय तक पहुंच नहीं पाएंगे. Right. Exactly. So that is how we have to understand this. Yes. Yeah. Now, let us go ahead and understand the explanation about Tejo Dhyan. And if you see the Tejo Dhyan, he explains okay, where is this
element or understanding of light in our body. Mooladhare Kundalini Bhujagakara Rupini Tatra Tishtati Jivatma Pradeep Kalika Akruti Dhyaye Tejomayam Brahma Tejo Dhyanam Paratparam. And he says, in the Mooladhara resides the Kundalini in the form of a serpent. Jivatma resides there in the form of the crest of the flame, that Kalika. Meditate upon Tejomaya Brahman, and Tejo Dhyan is Dhyana par excellence. ये एक उन्होंने बताया, और जैसे हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा कि he talks about the same flame in the middle of the eyebrows. He says भ्रुवोर मध्ये मन ऊर्ध्वे यत् तेजः प्रणवात्मकम् ध्याये ज्वाला वलियुक्तम तेजो ध्यानम तदैव हि. In the middle of the eyebrows, meditate on that teja with a subtle aura of rays, which is pranava and is beyond the reach of the manas. This is verily tejo dhyan. तो कैसे है कि आप एक बार तो मूलाधार में देख रहे हैं और दूसरे श्लोक में आप उसको भ्रूमध्य में देख रहे हैं. तो तेजो ध्यान की क्लैरिटी उन्होंने ये दे दी कि स्थूल ध्यान की प्रैक्टिस करते 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 आप जो है सूक्ष्म की तरफ जाने की कोशिश करो. तो सूक्ष्म की तरफ जाने का जो रास्ता है उन्होंने लाइट के साथ में कनेक्ट कर दिया, प्रकाश के साथ में, तेजो ध्यान के साथ में कनेक्ट कर दिया. और एक बार तो मूलाधार के पास वो आपको ये कहते हैं कि कुंडलिनी को उस रूप में देखो मानो जैसे वो ये तेजस्वी स्वरूप जो हमारा फ्लेम होता है, दिए की लौ होती है, उसी के रूप में उसको देखो. और देखो इन द सेंस क्या है, उसे वहां से एक्सपीरियंस करो. तो जब हमारे टीचर हमको बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आप मूलाधार पे ही नहीं देखते, जब आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जो मैं पिछली क्लास में नहीं बता पाया आप लोगों को, जब हम इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आज ये अगर मूलाधार में है तो मूलाधार से बढ़ती हुई इसकी रोशनी आपको कल स्वादिष्ठान से मणिपुर में दिखाई देगी. फिर इसकी रोशनी जो है बढ़ते हुए आपको अनाहत से विशुद्ध तक दिखाई देगी. और जब ये भ्रूमध्य में पहुंच जाती है तो अगले श्लोक का जो ये है कहना है कि मूलाधार से होते हुए तुमको इसको जो है अपने मस्तिष्क में, अपने भ्रूमध्य में एक्सपीरियंस करना है. यानी पूरे शरीर के अंदर वो ज्वाला, वो तेज, मानो जैसे पूरा शरीर का ऑरा जो है तेजस्वी हो गया हो. और इसी के ऊपर अगर आप फोकस करते रहेंगे तो ये कहते हैं कि ये जो है हमारे मन को पूरी तरह से ब्रह्मन के अंदर विलीन कर देता है. इट टेक्स यू देयर. एंड ही सेज when you are focusing on these rays, just imagine that these rays are the rays of the pranava. Now rays of pranava, rays of brahman, rays of ishwar, they are one and the same thing. And he says that this is something which is beyond manas. So now you are going beyond the chakras and you are becoming one with that brahman, which is nothing but tejo dhyan. So इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करके कहा. जैसे कि वो अगले श्लोक में हमको कहते हैं कि हाँ, अगले श्लोक में तो वो हमको इसकी तरफ जाने के लिए बता रहे हैं, सूक्ष्म ध्यान की तरफ. तो ये दो उन्होंने बताया और कहा कि तेजो ध्यानम श्रुतम चंड सूक्ष्म ध्यानम शृणस्व में बहुभाग्यवशादस्य कुंडली जागृति भवेत. तो यहां से उन्होंने शुरुआत कर दी सूक्ष्म ध्यान की. मतलब कहीं ना कहीं स्थूल ध्यान और तेजो ध्यान से हमारे जो अंदर की वो शक्ति है, जैसे आप थोड़ी देर पहले भावना की बात कर रहे थे, शायद हो सकता है वो शक्ति हमारी भावना ही हो. हमने ऐसे विजुअलाइज किया कि भाई अंदर का जो प्रकाश है वो और ज्यादा तेजोमय होता जा रहा है, उसका जो प्रकाश का जो लेवल है वो और बढ़ता जा रहा है. तो ये जो एक्सपांशन होना जो है ये कुछ और नहीं बल्कि इट इज अ जर्नी फ्रॉम द एक्सटर्नल टू द इंटरनल ओनली. So now he says कि coming to this kind of experience, तेजो ध्यानम श्रुतम चंड सूक्ष्म ध्यानम शुनव. अब तुमने ये यहाँ तक समझ लिया, अब इसकी आगे की जर्नी समझो. तो somewhere स्थूल ध्यान is like a foundation for तेजो ध्यान and तेजो ध्यान is like a foundation for our सूक्ष्म ध्यान. इस तरह से इसको समझ के हमको आगे ले जाना. तो let us go ahead and do that also. आत्मना सह योगेन नेत्र रंध्रा द्विनिर्गता
विहरेद राजमार्गे च चंचलत्वान् दृश्यते. He says, having heard about Tejo Dhyan, O Chanda, listen to me for that knowledge of Sukshma Dhyan. When by the great good fortune the Kundalini is awakened, it becomes one with Atman and rises above the level of the sockets of the eyes, vibrated in the Brahmarandra. It is not pursued because of high frequency of vibrations. So he says, it will not be pursued if you are involved into high frequency of vibrations. कैसे उन्होंने इसको इसको डिफाइन कैसे किया? विहरेद राजमार्गे च चंचलत्वान्य दृश्यते. तो चंचलत्वान, because of those vibrations which is connected to our state of mind with the day-to-day life or material experiences or worldliness, whatever you say, you will never be able to experience what you have been experiencing about this. So it becomes very important for you to treat your mind and make it very much focused and make it stable and steady. Then and then only you will find that your Kundalini is getting awakened and it is becoming one with the Atman. अब यहाँ पर आत्मन शब्द यूज किया हुआ है. हठ प्रतिपिका में हमने पढ़ा था कि वहां पर जो है शब्द का इस्तेमाल शिव के साथ में किया गया है. तो there Shiva is taken as super consciousness. Here you can take Atman Brahman as the super consciousness. And he says कि it goes through the Sushumna Nadi by experiencing the vibrations of the spirituality now. जो आपकी चंचलता बाहर की तरफ थी उससे हटकर जो है ये शक्ति उस मोमेंट के साथ में आपके ब्रह्मरंध्र से होते हुए फ्रॉम द सॉकेट्स ऑफ द आईज, यानी ये हुआ कि ये जो हमारा आईब्रोज का एरिया है, सॉकेट्स ऑफ द आईज इज द बैक, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स इट गेट्स यूनाइटेड विद दैट सेल्फ. तो कहीं ना कहीं वो षट चक्र की जो बातें हैं वो यहाँ पे सामने आती. भले उनके श्लोक में हमको ये दिखाई ना दे, लेकिन जिस तरह का लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ, इट इज a clarity that the Kundalini is residing at the Mooladhara and it is supposed to be activated by Sthula Dhyan and Tejo Dhyan. And once it is activated, it is to be promoted to move through the Brahmarandra, or we should say through the Brahmadwara, entering into Sushumna and reaching up to Brahmarandra. Brahmarandra is said to be the top of the head. तो वहां तक जो है उसको हम मोटिवेट करके आगे ले जाते हैं. और जब ये एक्सपीरियंस में आप आ जाते हो तो literally understand that you are in the state of ecstasy, you are in the state of oneness with godliness, or you are in the state of supreme absoluteness. ऐसा हम कह सकते हैं. So this is how he has connected the things and made us understand. और इससे ज्यादा वो सूक्ष्म ध्यान के बारे में कुछ बोलते ही नहीं, बस इतना कह के वो छोड़ दिया उन्होंने. एक ही श्लोक के अंदर एक्सप्लेन कर दिया, छोड़ दिया. जबकि स्थूल ध्यान के लिए उन्होंने पूरे मिला के जो है 13 से 14 श्लोक ले लिए बताने के लिए. तेजो ध्यान को समझाने के लिए 3 श्लोक ले लिए, और जहां बारी आ गई सूक्ष्म ध्यान की तो एक ही श्लोक में उन्होंने खत्म कर दिया. क्योंकि जो चीज के बारे में ज्यादा बोलना बताना कोई अर्थ ही नहीं है, वो आपका एक्सपीरियंस है जो आपको आगे ले जा सकता है. तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग रिड ऑफ ऑल दोस थिंग्स बाय डूइंग द अदर type of grosser or maybe the dhyan with the light, and you can go ahead and carry on with this sukshma dhyan, where you have to just understand that Kundalini has been awakened. It is traveling through the Sushumna, experiencing those vibrations of the flow of the Kundalini, which ultimately goes ahead and rests in between the sockets of the eyes above in the skull towards the Brahmarandra, and that is nothing but like you are becoming one with the Atman itself. So this is how it has been explained. तो कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बहुत सारी चीजों को हमारे दिमाग में डाल दिया. जी. तो अगर यही चीज अपन सांख्य के पर्सपेक्टिव से देखें, स्पेशली न्यूमेरिकल सांख्य के पर्सपेक्टिव से, तो वहां ये कहते हैं कि पुरुष जो है, इट इज नॉट दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, बट इट इज अनडिटेक्टेबल बिकॉज द frequency of vibration is very very subtle, right? और उन्होंने यहाँ भी यही कहा है, देखिए कि स्थूल ध्यान तो अपन ग्रॉसर एस्पेक्ट्स साथ मेल किए हुए हैं, तो जैसे जैसे पुरुष की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वो अनडिटेक्टेबल के एरिया में जाते जाते हैं, राइट? तो एनी प्रोग्रेस
actually we are moving away from the realm of Namarupa. And hence, very correctly, I think Hiran Muni has not spent more than one shloka on that. But actually, anything more will be, निरर्थक ही नहीं, वो actually क्या कहा जाए, वो एक तरह से मतलब प्रोफेन ही होगा, क्योंकि जो चीज सेक्रेड है उसको अपन नीचे उतारें तो ये तो फिर उचित नहीं है. सो बिल्कुल आई थिंक हिरण मुनि ने एकदम सही किया है. और उन्होंने अगले श्लोक के अंदर एक प्रैक्टिस का नाम ले लिया कि ये जो प्रैक्टिस है ये कुछ और नहीं बल्कि ये शांभवी मुद्रा है. अच्छा, ऐसे कह दिया उन्होंने. जी कि जी उन्होंने जी. देखो, अगर आप अगला श्लोक देखेंगे तो वो कहते हैं शांभवी मुद्रया योगो ध्यान योगेन सिद्ध्यति सूक्ष्म ध्यानम इदम गोप्यम देवनमपि दुर्लभम. ये तो not even easily attainable to gods also. It says this is that sukshma dhyan which is to be zealously guarded. And what is that? That dhyana yoga which happens with the practice of shambhavi mudra. तो ये जो ऊपर का जो उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है कुंडलिनी का जागरूक, क्योंकि अगर कभी हम मुद्रा के चैप्टर में चले जाते हैं और उन्होंने जो शांभवी मुद्रा का जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, शांभवी मुद्रा के एक्सप्लेनेशन के अंदर वो क्लियरली बोलते हैं कि आप अपने हील से पेरिनियम को प्रेस करो, प्रेस करते हुए जो है कुंडलिनी को स्टिमुलेट करो, और फिर जो है योनि मुद्रा करो. योनि मुद्रा करते हुए जो है अपने गुद का आकुंचन करते हुए मानो जैसे कुंडलिनी को अपने राइजिंग के लिए एनकरेज किया. और जब योनि मुद्रा का अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, अपना शांभवी मुद्रा का योनि मुद्रा के साथ में अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि कुंडलिनी को नीचे से ऊपर की तरफ उठाना और यहाँ ले जाकर फोकस करते हुए वहीं तक लेके जाके इसको पकड़ के रखना, सो दैट रिटेंशन इज मेंटेन. तो उन्होंने यही कहा कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो शांभवी मुद्रा जो हमने पहले पढ़ी वो ये ध्यान योग की तरफ आपको, और इतना ही नहीं, ये इसको फिर से उन्होंने नेक्स्ट चैप्टर में रिपीट किया हुआ है ध्यान योग समाधि के लिए. और उन्होंने जो बताया है वो शांभवी मुद्रा को ही बताया. इसका मतलब ये हुआ कि सूक्ष्म ध्यान, शांभवी मुद्रा और जो समाधि का जो स्टेट है वो बस आगे पीछे है. जैसे निर्बीज समाधि से कैवल्य की प्राप्ति के बीच में धर्म में एक समाधि का स्टेज आता है, और वो धर्म में एक समाधि के स्टेज के अंदर जो है जो लेटेंट इंप्रेशंस, जो थोड़े बहुत जो इतने ऐसे इम्प्रिंट्स जो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं या फिर हमारे चित्त में बैठे हुए हैं, जिसको मतलब अभी कोई मतलब ही नहीं है कि वो फ्रूटफुल हो जाएंगे या आगे जाके जो है वो अपने शेप में आएंगे. अब आपको क्या करना है, उसको ड्रॉप कर देना है. तो उसको उसको गो थ्रू करते हुए ड्रॉप करना ही एक प्रकार का उसका भोग हो गए जैसा हिसाब है. यानी कोई भी कर्मों को बिना भोग किए आप आगे नहीं बढ़ सकते. ये जो कंसेप्ट है उन्होंने वो क्लैरिटी दे दी कि धर्म में एक समाधि में वो हो जाता है कि जो चीजें बसी हुई है उसको आप ड्रॉप कर देते हो, एंड दैट इज हाउ यू लीड योरसेल्फ अहेड. तो यहाँ पर उन्होंने शांभवी मुद्रा का नाम लेकर और पिछले श्लोक के अंदर ये एक्सप्लेन करके ये बता दें कि ये कुछ और नहीं, ये शांभवी मुद्रा ही है जो आप अगर प्रैक्टिस करते हैं इस तरह से तो यू विल फाइंड दैट यू हैव रेज्ड योर एनर्जी इन बिटवीन योर सॉकेट्स ऑफ द आईज और इन बिटवीन योर आईब्रोज, एंड यू सी इट नथिंग बट द शांभवी मुद्रा, दैट इज ध्यान योग. तो उनका जो सूक्ष्म ध्यान और शांभवी मुद्रा ये सेम है. कभी कभी ना हम बड़े बड़े टीचर्स लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स का लेवल उतना मैच्योरिटी वाला होता नहीं है, तो वो वाईसीबी के क्वेश्चन पेपर में लेवल 3 में या योग मास्टर्स में ये क्वेश्चन डालते हैं कि सूक्ष्म ध्यान कैन बी रिलेटेड टू द फॉलोइंग. तो वो एक लिख देंगे कि मेकिंग द कुंडलिनी राइज, दूसरा लिख देंगे बिकमिंग वन विथ आत्मन, तीसरा लिख देंगे शांभवी मुद्रा, और चौथा लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव. अब वो अगर जिसने पढ़ाई नहीं किया होगा तो वो ये सोचता है ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, सूक्ष्म ध्यान के अंदर तो उन्होंने खाली आत्मा वाली बात की हुई है, तो वो बस वो एक लिख के छोड़ देता है. तो एग्जामिनर के दिमाग में या फिर जो भी इवैल्यूएटर उसके दिमाग में ये आ जाता है कि ये बच्चे ने इसको बराबर से समझा, जबकि उसको नीचे ये लिखना चाहिए था कि ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, ऑल द थ्री आर सपोज्ड टू बी कनेक्टेड विद. तो ये ऐसा ऐसे तरीके से इवैल्यूएशन भी करते हैं. तो कभी कभी मैं बोलता हूँ कि आप लोग 1 साल के बच्चे को अगर कभी ये ऐसे सवाल पूछ के अगर कभी लेवल 3 का आप इवैल्यूएशन करेंगे तो वो कभी पास ही नहीं होंगे.
They will never pass when you are asking such kind of question, because you are trying to know what you have achieved in 10 to 15 years from them in 1 year. So were you knowing in 1 year? मैं वही एग्जामिनर को पूछता हूँ, क्योंकि क्या होता है, ये होने के बाद में ना वो मॉडरेशन के लिए हमारे पास आता है। जब मॉडरेशन के लिए हमारे पास आता है, हम उसको देखते हैं तो हम बोलते हैं भाई ये सवाल तो बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन ये बच्चे आंसर नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा बच्चा अगर आंसर कर दिया तुक्का लगा के, तो वो बात अलग है। तो लेकिन ये इस तरह से तो वो समझ में आने वाली जो बात है, दैट विल कम टू यू ओनली व्हेन यू आर इनटू लिटरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रैक्टिस एज यू गो थ्रू इट रेगुलरली। अंटिल देन दिस थ्री आर वन एंड द सेम थिंग, ये हमको पता ही नहीं चलता। तो इसको इस तरह से समझना चाहिए। और मतलब सूक्ष्म ध्यान को उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन करके हमको छोड़ दिया कि नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। और फिर तो आगे के इसमें तो वो यही बोलते हैं कि ये इससे 100 टाइम्स ये है, और ये इससे 100 टाइम्स जो है ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये क्लियरिटी हमारे सामने आ जाती है कि स्थूल ध्यानात् शतगुणम तेजो ध्यानम प्रचक्षते, तेजो ध्यानम लक्ष्य गुणम सूक्ष्म ध्यानम परात्परम। So Tejo Dhyan is 100 times superior to Sthula Dhyan, and Sukshma Dhyan, which is greatest of all, is the 100,000 times superior to Tejo Dhyan. Iti te kathitam chanda dhyana yogena sudurlabham atma sakshad bhaved tasya atma, क्या लिखा हुआ है, स्मात् स्म ध्यानम विशिष्यते। यस्मात् तस्मात् है, यस्मात् तस्मात् ध्यानम विशिष्यते। Thus I have, O Chanda, described to you dhyana yoga, which is rare achievement by virtue of which becomes one with Atman. This is the characteristic feature of dhyana. So iti Shri Gheranda संहितायाम घेरंड चंड संवादे घटस्थ योगे सप्तम साधने ध्यान योगो नाम षष्ठ उपदेश है। तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था, बट आई थिंक वी शुड गो थ्रू दिस रिपीटेशन एंड ट्राई टू अगेन कनेक्ट विद इट। सो वी हैव डन दैट टुडे एज अ रिवीजन आल्सो। सो वेरी हेल्पफुल सर। या, तो दिस इज हाउ वी शुड अंडरस्टैंड ध्यान। एंड मेनी पीपल without doing any other kind of preparatory, they are able to do dhyan. But there are people who cannot do dhyan without preparatory. So those people who can do dhyan without preparatory, just we have to understand कि उनके संस्कार ही कुछ ऐसे हैं पिछले जन्मों के, कि उनको बस ये पता चलना था कि ध्यान इस तरह से किया जाता है, और वो बैठ जाएं तो ऑलरेडी वो जो पिछले जन्मों का जो उनका जो पुण्य है वो उनको ध्यान की अवस्था में ऑटोमेटिकली ले जाता है। So this is how we have to connect with this and go ahead. नहीं तो कई लोग ऐसा बोलते भी हैं, पूछते भी हैं, लेकिन सर कई लोग तो कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते, डायरेक्ट ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, तो क्या ये सही है? फिर उनको ये समझाना पड़ता है कि ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन सबके लिए सही है ये तो जो साधक अभ्यास कर रहा है उसी को पता चलेगा। करते समय जब उसको पता चलता है कि नहीं, माय माइंड इज गेटिंग डिविएटेड अगेन एंड अगेन, देन ही शुड कम टू द प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस एंड देन लीड हिमसेल्फ टू ध्यान। इस तरह से ये पूरे सब्जेक्ट को ध्यान के हमको समझना चाहिए। So anything else there in your mind related to the dhyana? Otherwise we are going ahead now with the Saptama Upadesha, which is related to Samadhi. So here maybe at this juncture, right? So dhyan is the so middle part of Sanyam, right? On one hand is dharana and the other is Samadhi. So so how exactly do you differentiate between the three? क्योंकि इन तीनों को क्योंकि ये संयम का भाग हैं, तो स्पेशली इन ले डिस्कोर्स मैंने ऐसा देखा है कि वो मोर और लेस सब सिनोनिमसली यूज करते हैं। हाँ। लोग, है ना? तो ये, लेकिन क्या या क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली ये इन तीनों में म्यूचुअल डिफरेंस क्या है? सही देखा जाए तो डालेंगे? सही देखा जाए तो कोई डिफरेंस है नहीं, पहली बात। नाउ यू हैव टू सी द थिंग एट द ग्रॉसर लेवल, इट इज धारणा। एट द मीडियम लेवल, इट इज ध्यान।
And the same thing at the level of samadhi, you at the level of the very subtlest experience, it is samadhi. तो उन्होंने क्या बोला कि संयम जो है ये तीनों को साइमल्टेनियसली हमको प्रैक्टिस करना चाहिए. जब हम साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करते हैं तो इनिशियली यू आर इनटू धारणा ओनली. When that dharana becomes dhyana, we don't know, and when that dhyana becomes samadhi, we may be knowing, but at the same time we don't care about it because we want to remain focused. तो वो जो त्रिपुटी वाली जो भाषा है कि knower, knowledge and the known, ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये जो तीन जो चीजें हैं, तो ध्याता के दिमाग में जब तक ये बात रहती है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तो ये समझ लो कि वो धारणा में है. जहां उसका ये भाव निकल जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तो ये समझ लो कि नाउ ही इज इनटू ध्यान, विच इज नाउ फर्दर इनटू प्रोग्रेस विद समाधि. यानी और ये वो कहें कि ध्यान, ध्यान हो रहा है, मैं कर रहा हूं, ध्यान हो रहा है, वो नॉलेज में है. वो उसके दिमाग में एक बात रहती है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, वो ड्रॉप हो गया, अब वो नहीं है. लेकिन ध्यान हो रहा है, इस अंडरस्टैंडिंग में वो चल रहा है. लेकिन जब वो जो ध्येय है उसके साथ में जैसे ही एक स्वरूप हो जाता है, तो मैं ध्यान कर रहा हूं, ये ध्यान हो रहा है, ये चीजें सब ड्रॉप हो जाती है. फिर रह जाता है सिर्फ ऑब्जेक्ट, उसके अंदर समा जाना. यानी ऑब्जेक्ट कोई भी हो, that object can lead us into the objectivity of the self itself. करेक्ट. क्योंकि कोर में तो वही पुरुष ही है ना, चाहे हम हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, उसके बिल्कुल पेनिट्रेट करेंगे अपन कोर के अंदर तो एक ही चीज मिलेगी. करेक्ट. और ये बात हमको योग सूत्र के अंदर बहुत अच्छे से पता चलती है कि जब तक हम प्रधान प्रकृति के लेवल तक नहीं आते, तो उन्होंने ऐसा एहसास कराया कि तुम संप्रज्ञात समाधि में ही हो, तुम अभी इसके आगे गए ही नहीं. क्योंकि वहां पर वितर्क, सवितर्क, सविचार, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, सानंद और सास्मिता वाले जो स्टेट हैं, वो स्टेट में ही हैं आप. और वो सास्मिता, आनंद के बाद वाली जो स्थिति उन्होंने बताई, स अस्मिता. तो नाउ दिस अस्मिता इज नॉट विद दैट अस्मिता कि मैं ध्यान कर रहा हूं या मैं ध्यान को के प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, वो नॉलेज को एक्सपीरियंस कर रहा हूं. ये इससे वो पूरी तरह से निकल जाता है और उसके दिमाग में ये रहता है कि एम आई हियर और एम आई हियर. तो ही इज इनटू दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द अस्मिता कि दिस अस्मिता इज कनेक्टेड टू प्रकृति और दिस अस्मिता इज कनेक्टेड टू पुरुष. देयर दैट वो आप जो बोल रहे थे ना, डिस्टिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि वाली बात, वो यहां पर ये आपको एहसास कराती है. तो वो विशेष जो लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर रहे थे, वो साक्षी का भाव वहां पर आ जाता है. एंड ही लिटरली सीज एवरीथिंग एज इट इज एंड डज नॉट even gets involved with them, and that sakshi itself takes him to the understanding of oneness with the purush. तो ये धारणा, ध्यान, समाधि एक मतलब जो नया स्टूडेंट है, नोवाइस है, वो आया हुआ है, तो हम उसको ऐसे ही बोलते हैं कि भाई ये धारणा है वेर यू आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट, ये ध्यान है वेर यू आर एक्चुअली गोइंग बियॉन्ड कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेटिंग, and this is nothing but this contemplation leads you into oneness with the self, that is samadhi. तो ये धी का पूरी तरह से स्वरूप में समा जाना, अगर हम इसको समाधि कहते हैं, तो वो प्रोसेस को समझने के लिए जो संयम का जो कंसेप्ट है ना, वो समझ. इस संयम इज समथिंग वेयर यू कैन नॉट से कि आई एम डूइंग धारणा नाउ, आई एम डूइंग ध्यान नाउ एंड आई एम डूइंग समाधि नाउ. You cannot bifurcate the three. These three are happening simultaneously at the same time. The state of the chitta is going through that level automatically as you become focused on the object. जैसे कि एक नया जो स्विमर होता है ना, उसका फर्स्ट डे स्विमिंग पूल के अंदर आप इमेजिन कीजिए, उसको स्विमिंग करना बिल्कुल नहीं आता, तो कहीं पर वो पाइप को पकड़कर जो है खाली पैर हिलाता रहता है. तो ऐसा समझ लीजिए कि ये उसका बहिरंग योग का अभ्यास चल रहा है. अब उसने पाइप को छोड़ दिया और अपने आप को फ्लोट कर रहा है.
तो पाइप को छोड़ दिया, प्रत्याहार हो गया, मतलब अब उसको सहारे की जरूरत नहीं। अब वो चीजें जो उसको मतलब डिपेंडेंट बनाती हैं, वो चीजें है ही नहीं, छूट गई वो चीजें। अब वहां से जो है वो ये बोलता है कि मैं ये ऐसे करता हूं तो ये मैं स्विम कर रहा हूं, दोनों ऐसे से करता हूं तो मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक्स दे रहा हूं, हाँ? और मुझे सांसें भी लेनी है तो चेहरा मुझे ऐसे ऐसे करते रहना है। अब ये सारी चीजों के ऊपर, कई चीजों पे फोकस करके वो स्विमिंग करता है, वन एंड टू द अदर एंड, फ्रॉम अदर एंड टू दिस एंड, एंड देन यू कैन से ओह नाउ यू आर इनटू धारणा। अब वो स्पीड से करने लगता है तो वी से यू आर इन ध्यान। अब क्या होता है, वो सारी चीजें वो करता रहता है, हाथ भी हिलाता रहता है, पैर भी हिलाता रहता है, उसके मुंह में से पानी जा रहा है, नाक में से आ रहा है, नाक में से पानी जा रहा है, मुंह में से आ रहा है, और उसको कोई तकलीफ भी नहीं होती, कोई परेशानी भी नहीं होती, ब्रीदिंग से भी कोई इश्यू नहीं होता उसको, और वो ऐसा तैरता रहता है जैसे कोई मछली पानी में तैर रही है। He becomes, means water becomes his life, and that swimmer attains that state. So it is like you are coming to that state of some. तो धारणा, ध्यान, समाधि, जो ये जो तीन प्रोसेस है, इसको अलग अलग हम डेफिनेशन के हिसाब से तो हम उसको अलग अलग बता ही सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है, जब संयम की बात आती है, जैसे आपने पूछा संयम में, तो संयम के अंदर जब बात आ जाए ना, तो ये तीनों साइमल्टेनियसली ही होता है, और ये साइमल्टेनियसली होलिस्टिक होने के लिए हमने पहले सारी तैयारियां कर ली। इट इज दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। थैंक यू। So should we go ahead with the samadhi part now? Yeah. Coming to lesson number 7. Samadhischa paro yogo bahu bhagyena labhyate guroho krupa prasadena prapyate guru bhaktihi. Now samadhi, the supreme yoga, is attained by great merit. Now great merit is whatever we were talking until now. भाई तुम जो कुछ भी प्रैक्टिस करते हो, जिस तरह से अपना साधन को जो है साधना के लायक बनाते हुए आपको आगे लेके चलते हो, इट इज अचीव्ड बाय द ग्रेस ऑफ द गुरु। पहले तो गुरु का मार्गदर्शन लिया, गुरु के मार्गदर्शन लेने के बाद में आपने सीख कर प्रैक्टिस की, और कई बार तो टेक्स्ट में ऐसे भी लिखा हुआ है कि तुमने गुरु से सीख तो लिया, लेकिन अब जब तुम साधना कर रहे हो तो वो भी गुरु के मार्गदर्शन में करो, कि गुरु की नजर है तुम पर। जब तुम साधना करते हो ना, गुरु की नजर है, तो शायद कभी हो सकता है तुमको और कुछ वो बताने के लिए आ जाए। तो दैट ग्रेस ऑफ द गुरु इज एसेंशियल, एंड विथ दिस devotion to him, he will be attaining to samadhi, the supreme yoga, it is said. Vidya pratitihi swaguru pratiti pratitir atma pratitir manasah prabodah dine dine yasya bhavet sa yogi शुभो शुशोभना शुशोभना अभ्यासम उपैति सद्यः. Now he says the yogi soon acquires this exquisite experience, who is convinced by what he has learned and heard from this guru, who has developed self-confidence and whose mind is thus becoming more and more enlightened day by day, day after day. So here the same essence of first shloka is going into the second shloka also. When he says su shobhana abhyasam upaiti, so you are becoming more and more enlightened with the spiritual effects of your practices. So whatever was learned from guru, whatever was absorbed within, brought it into the practice, you have developed that kind of self-confidence wherein your mind is becoming more and more towards clarity, and that is enlightened day by day. So हमारे मन का शुद्ध होना, क्लैरिटी की तरफ आना बहुत जरूरी है अगर हमको समाधि का एक्सपीरियंस होना है। अभी हम देखते हैं कई बार बड़े बड़े योग गुरुओं को देखते हैं, स्टेज पर बातें करते हैं, कोई उनके तरफ ये नहीं है, there is no ill feeling as such, but many a times we see कि they may be belonging to that class of gurujan, they may be at the highest level,
and they make themselves as the representatives of yogis, and they become leader there. Having all this understanding, many a times in their speeches you will come across a explanation where they give certain examples, and in those examples also they will come across certain kind of ahankar. तो समझ लो साबिर भाई से किसी ने पूछ लिया कि सर मुझे ना 8 घंटे की नींद भी कम पड़ती है, मुझे 9 से 10 घंटे जो है जरूरी पड़ जाते हैं। और साबिर भाई क्या बोलते हैं, 8 घंटे की नींद भी जो है आपको कम पड़ती है, 9 से 10 घंटे आप सोते रहते हो, मुझे देखो मैं 4 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेता हूं। और जब ऐसा अगर कभी साबिर भाई बोलेंगे और सामने अगर कभी आप जैसे योगी बैठे हुए रहेंगे, बोलेंगे तुम वो सीट के ऊपर बैठ के भी तुम जो वो नहीं सीखे जो तुमको जानना चाहिए। तुम अपने आप को तो कुछ भी बोलो, आप अपने आप को गुरुओं का गुरु बोलो, सब कुछ बोलो, बट एट द सेम टाइम नाउ यू हैव displayed that fact कि you are yet to overcome certain things and go beyond that. और ये आपको सब में मिलेगा। मैंने अच्छे-अच्छे गुरुओं के, इंडिया के गुरुओं को सुना हुआ है, राइट फ्रॉम सो एंड सो। जब सो एंड सो बोलता हूं तो आप समझ जाओ वो अपने नाम के आगे 2 बार श्री श्री लगा देते हैं। तो कान पकड़ता हूं, ऐसा किसी का नाम लेके किसी को बारे में नहीं बोलना, क्योंकि ये भी मेरे शान के खिलाफ है, नहीं करना चाहिए। लेकिन सारे उनको देखा हूं मैं, उनके स्पीचेस को देखा हूं, उनके लेक्चर बहुत अच्छा लेक्चर, दिल खुश कर देते हैं, इतना अच्छा बयान करते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि इनको ये स्किल मिला कहां से इनको ये बात करने का, इतना समझाने का तरीका। इनको कोई भी प्रश्न पूछो इनके पास जवाब है, बराबर से जवाब दे देते हैं। लेकिन जब वो जवाब देना शुरू करते हैं और जब बातें बोलते हैं और अगर आप गौर से सुनो तो उनकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उनको कनेक्ट कर जाती है, उनको अंदर पुल कर लेती है। बोले मैं तो सिर्फ 4 घंटे सो लेता हूँ, 4 घंटे में मेरी नींद पूरी हो जाती है। जब मेरी 4 घंटे में हो सकती तो तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती? Now where are you coming into that comparative mode? Why are you not answering that student the right answer कि how he is supposed to prepare and come to this level? When you show yourself, तो वो स्टूडेंट तो बोलेगा सर आप तो गुरु हो, मैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा बोल दिया तो क्या रह गया फिर। तो now that is where the ahankar is something, the asmita that we were literally talking about now is to be understood to a great level. और ये जो है ये गुरु के हैमरिंग से ही निकलता है। एक गुरु जो है ना, अगर एक शिष्य अगर कभी गुरु के सानिध्य में रहकर अगर कभी अपना डेवलपमेंट करे और उसके नजर में हमेशा रहे, हमेशा जब भी जाएगा वो योगियों का योगी हो जाएगा, ये बात और है। लेकिन अपने गुरु के सामने आएगा तभी भी गुरु कुछ ना कुछ उसके अंदर ना निकालते रहेंगे। इसीलिए जो है यहाँ पर ये गुरु का जो महत्व जो बताया, और हर योगिक टेक्स्ट में आप ले लो, कोई भी योगिक टेक्स्ट आप ले लो, हठ योगिक टेक्स्ट आप ले लो, उसमें ये गुरु का जो वर्णन है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति आप ले लो, शिव सरोदय आप ले लो, शिव संहिता आप ले लो, उसमें तो गुरु का इतनी महिमा बताई गई है कि मतलब अगर कभी आपने इसको अगर वैल्यू नहीं दिया तो आप योग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। द ग्रेस ऑफ द गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। सो दिस इज वेयर ही yes two things. So one is जो अपन ने योग गुरुओं की बात की, वैसे एक और उनको वो भी दिया जा सकता है जवाब कि भाई पतंजलि योग सूत्र में लिखा है मेडिटेट अपॉन द नॉलेज दैट कम्स ड्यूरिंग स्लीप। तो स्लीप भी साधना है अगर करना चाहो तो। yes very much और दूसरा ये गुरु के महत्व की, और जैसे आपने कहा कि गुरु his job is to find fault, एक कहानी याद में आती है। तो एक रविंद्रनाथ जी के शायद अंकल थे, अवनेंद्रनाथ टैगोर, तो वो बहुत कलाकार थे।
पेंटर थे और सिखाते भी थे। तो उनका एक शिष्य था नंदलाल करके। तो नंदलाल जो है वो एक्चुअल तो मतलब शायद सीखते सीखते अपने गुरु से भी ज्यादा अच्छा पेंट करना सीख गए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि रविंद्रनाथ जो है रविंद्रनाथ जी के साथ बैठे थे और नंदलाल जी आए एक अपनी शायद कृष्ण जी की पेंटिंग लेके दिखाने के लिए, और उन्होंने उसको देखा, रविंद्रनाथ जी ने देखा और वो कहते हैं इतनी सुंदर पेंटिंग मैंने कभी देखी नहीं जीवन में। वो ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण जी बिल्कुल पेंटिंग से निकल आके आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। पर रविंद्रनाथ जी ने उसको यूं फेंका आउट ऑफ द विंडो। सेड ये तुम पेंटिंग कहते हो इसको? तुम्हारे से ज्यादा अच्छा पेंटिंग तो जो जो ये आपके बंगाल रूरल बंगाल के पेंटर्स हैं, जो वो मूर्ति बनाते हैं, वो ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। तो यहाँ रविन्द्रनाथ जी तो भौचक के रह गए, बट एनीवे गुरु शिष्य की बात थी तो उन्होंने कुछ कहना उचित नहीं समझा। तो नंदलाल ने अपने गुरु के पांव छुए और निकल गए, और वो 3 साल तक उनका कुछ पता नहीं। और लेकिन जैसे वो निकल गए, रविन्द्रनाथ जी गए और वो पेंटिंग बाहर से उठा लाए और बोले दिस इज कंप्लीटली बियॉन्ड मी। ये पेंटिंग मैंने कभी इससे अच्छी देखी नहीं है, एंड आई यू नो पार्डन मी बट आई डेयर टू से कि शायद आप भी इतनी अच्छी नहीं बना सकते हो। देखा तो उनके रविन्द्रनाथ जी की आंख में आंसू थे, तो और चकित हुए, ये मामला क्या है? से देखो, मुझे मालूम है कि उसकी लेवल ऑफ एबिलिटी हैज रीच्ड a tremendous level, certainly better than me, but he has more potential. I expect little more from him. तो अगर अभी आप उनको ये बोल देता, अरे वाह 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 कितनी अच्छी आपने पेंटिंग बनाई है, तो बस वो वहीं सेटल हो जाते। अब मैंने उनको फर्दर चैलेंज कर दिया, और हुआ भी ऐसा कि 3 साल बाद फिर वो सीख के आए, और फिर जब एक और मूर्ति लेके आए तब उन्होंने हक किया और बोला कि भाई मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था और मुझे क्षमा करना, मैं दैट इज द थिंग। सो गुरु की महिमा keeps increasing as we go, finer and finer. ये शायद सॉरी मुझे जस्ट याद आ गई थी। नहीं बहुत अच्छा ये है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब वो कैसे किस अदा से आपको वो मैसेज देंगे, उसका कोई ये नहीं है उसका। इट कम्स टू यू इन दैट वे, एंड वी ऑल आर फॉर्चुनेट टू स्टडी इन अंडर आवर वेरियस गुरु के। मतलब जब खाली वहां बैठ जाओ उनकी बातें सुनो, जबकि बातें उनकी लैंग्वेज तो एकदम साधारण होती है, लेकिन वो साधारण से लैंग्वेज में भी जो है इतना आपको वो सुकून देकर निकल जाएंगे कि आप उसमें से कई और मीनिंग्स निकाल कर जो है ना अपने जो आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उसके अंदर और 4 चांद लगा सकते। तो इट इज लाइक दैट, नो डाउट अबाउट इट। सो वेल सेड, यस, दैट इज रियली ट्रू अबाउट ऑल द गुरुज इन फैक्ट। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन, ही सेज घटात भिन्नं मनः कृत्वा च ऐक्यं कुर्यात् परात्मनि समाधिं तं विजानीयान् मुक्त संज्ञो दशादिभिः। Detaching the mind from the body, one should make it one with Param Atman. That is known as Samadhi, which is not a state of any kind of consciousness as we understand this word. समाधिम तम विजानीयान मुक्त संज्ञो, संज्ञा नाउन, मतलब समाधि ये जो नाउन है इससे भी जो है ये आगे की बात हो जाती है। दिस इज नोन एज समाधि विच इज नॉट अ स्टेट ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस एज वी अंडरस्टैंड दिस वर्ड। सो यहां पर एक तरीके से उन्होंने समाधि का डेफिनेशन ही किया हुआ है कि व्हाट इज द डेफिनेशन? डिटैचिंग द माइंड फ्रॉम द बॉडी, वन शुड मेक इट
वन विथ परमात्मन, परमात्मा से एक करते हुए अगर कभी हमने अपने मन को उसमें विलीन कर दिया तो इसी को समाधि कहते हैं. दैट इज नोन एज समाधि, which is not a state of any kind of